Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with the set number 41 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own and then proceed with the video solutions. So this particular set I have taken from CAT 21 slot 1 paper, and the set says a journal plans to publish 18 research paper written by 8 authors A, B, C, D, E, F, G and H in 4 issues of the journal scheduled in January. April, July and October, each of these research papers were written by exactly one of the 8 authors. 5 papers were scheduled in each of the first 2 issues, while 4 were scheduled in each of the last 2 issues. Every author wrote at least one paper and at most 3 papers. The total number of papers written by A, D, G and H were double than that of the total number of papers written by the other 4 authors. 4 of the authors were from India and 2 were from Japan and China. Each authors belonged to exactly one of these areas: manufacturing, automation and logistics. 4 of the authors were from logistic area and 2 were from automation area. As per the journal policy, none of the author could have more than one paper in any issue of the journal. The following facts are known. F, an Indian author from logistic area, wrote only one paper and it was scheduled in the October issue. A was from the automation area and did not have a paper scheduled in the October issue. None of the Indian author were from the manufacturing area. None of the Japanese or Chinese author were from automation area. A and H were from different countries but had their papers scheduled in exactly in the same issue. C and E, both Chinese author from different area, had the same number of papers scheduled. Further, E had papers scheduled in consecutive issues of the journal, but C did not. B from the logistic area had a paper scheduled in the April issue of the journal. B and G belonged to the same country. None of their papers was scheduled in the same issue of the journal. D, a Japanese author from the manufacturing area, did not have a paper scheduled in the July issue. C and H belong to the different areas. एक बार क्वेश्चंस भी देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द नंबर ऑफ पेपर रिटन बाय बी, सी, E and G respectively. How many papers were written by Indian authors? Which of the following statement must be true? Which of the following statement is false? Which of the following statement is false? Which of the following is a correct sequence of the number of paper by author from automation, manufacturing and logistic area respectively? ठीक है. मैट्रिक्स अरेंजमेंट का एक्सटेंडेड सेट जहाँ पे अपने को क्या बोला हुआ 8 रिसर्च पेपर्स 8 रिसर्चर्स हैं एंड दे आर पब्लिशिंग देयर 18 रिसर्च पेपर्स. दे बिलोंग टू सर्टेन कंट्रीज. वो कंट्री कौन सी हो सकती है? इंडिया, जापान और चाइना. They belong to certain background, certain area. It could be logistic, manufacturing or automation. And their publish का जो month है, it could be January, April, July and October. इन 4 में से कोई एक. ठीक है. बहुत सारे एलिमेंट हैं. अब हम क्या करेंगे? Like what I've done, I've created a small table. I started with the author part because while I was reading I realized that authors के बारे में बहुत information है. A, F, C, H सब देखो यहाँ पे. अगर आपने addition facts में ध्यान दिया होगा तो वो बहुत है. ठीक है. लेट्स ट्राई टू पहले एनालाइज कि भाई ऊपर वाले पैसेज में क्या हुए, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है. जैसे पहला इन्फॉर्मेशन ये दिया कि ईच ऑफ द रिसर्चर्स वर रिटन बाय एग्जैक्टली वन ऑफ द 8 ऑथर्स. 5 पेपर वर शेड्यूल्ड इन द मंथ ऑफ फर्स्ट 2 इशू. ठीक है, यानी कि जनवरी में 5 है. ठीक है, जनवरी के बाद अपने को अप्रैल में भी 5 है. देन जुलाई में 4 होने वाले हैं एंड अक्टूबर में भी 4 होने वाले हैं. ठीक, पहला इन्फॉर्मेशन तो अपने को यहाँ पे ये दी गई है. फिर लिखा हुआ है एवरी ऑथर रोट एटलीस्ट 1 पेपर एंड एटमोस्ट 3. ठीक है, कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 3. ठीक है, अच्छा. फिर कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ पेपर रिटन बाई ए, डी, जी एंड एच वॉज डबल देन दैट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेपर रिटन बाई द अदर 2. यानी कि 2:1 के में डिस्ट्रीब्यूटेड है. यानी कि फिर 18 को डिवाइड कर लेंगे 2:1 में, कितना हो जाएगा 12 और 6. यानी कि अपने को एक पॉइंट यहाँ पे मिला कि ए, डी, जी और एच मिल के 12 रिसर्च पेपर लिखते हैं. ठीक है, यानी कि ये जो बचे हुए लोग हैं, यानी कि बचे हुए लोग कौन है अपने पास? बी, सी, ई और एफ मिलके कितने लिखते हैं? टोटल 6 लिखते हैं. यानी कि ये 18 का डिस्ट्रीब्यूशन अपने को यहाँ पे मिल गया. ठीक, अच्छा और पढ़ते हैं. The total number of paper written by ADGH were double than that of the paper written by other fours. 4 of the authors were from India. ठीक है, इंडिया से 4 लोग हैं. इंडिया के 4 लोग हैं, जापान के 2 लोग हैं और चाइना के 2 लोग हैं. ठीक है, अपने को ये भी इंफॉर्मेशन लिख दी हमने. फिर आगे लिखा 4 ऑफ द ऑथर वर फ्रॉम लॉजिस्टिक एरिया एंड 2 वर फ्रॉम ऑटोमेशन एरिया. अच्छा, 4 लोग ऐसे थे जो लॉजिस्टिक एरिया के थे. लॉजिस्टिक एरिया वाले 4 लोग हैं, ऑटोमेशन वाले 2 लोग हैं.
ऑटोमेशन के अलावा कौन सा बच रहा है अपने पास, मैन्युफैक्चरिंग, उसके भी 2 लोग होने चाहिए तभी वो 8 का डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा। ठीक, अच्छा हमने पहला जो पूरा पैसेज का जो पार्ट था यानी कि यहाँ तक था, इतने से हमने ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली और ये चारों अलग अलग चीज़ें हैं एंड ऑल दी 4 थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू समराइज दिस सॉल्यूशन, नहीं तो इसके बिना नहीं हो पाएगा। ठीक है, एडिशनल फैक्ट्स पे चलते हैं। एडिशनल फैक्ट क्या दिया हुआ है अपने को, बोला हुआ है पॉइंट नंबर 1 पे चलते हैं। एफ एन इंडियन ऑथर फ्रॉम लॉजिस्टिक एरिया। ठीक है, एफ कौन है, कोई इंडियन है, एंड एफ एन इंडियन ऑथर फ्रॉम द लॉजिस्टिक एरिया रोट ओनली 1 पेपर, ये लॉजिस्टिक का है और ये एक ही रिसर्च पेपर लिखता है और ये कब लिखता है, अक्टूबर में लिखता है। ठीक, अच्छा एफ यहाँ पे था जिसका कि 1 मिल गया। अच्छा रिमेनिंग बी सी ई का कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक, पॉइंट 1 डन। पॉइंट नंबर 2, ए वॉज फ्रॉम ऑटोमेशन एरिया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं पढ़ते हुए जो एकदम यूनिक इन्फॉर्मेशन है या जो एकदम ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन है, पहले उसको मैं प्लग इन करने वाला हूँ एंड देन आई थिंक ऑफ कि भाई लॉजिकली कितना डिड्यूस करें, बिकॉज जब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो ना तो आपको क्या करना चाहिए, पहले जितना फ्री का सॉल्यूशन मतलब वो मिल रहा है इन्फॉर्मेशन, पहले उनको प्लग इन कर लो अपने अरेंजमेंट में एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग द थिंग्स। ठीक है, जैसे ए वॉज फ्रॉम ऑटोमेशन एरिया एंड डिड नॉट हैव अ पेपर शेड्यूल्ड इन अक्टूबर। ए ऑटोमेशन का है, ठीक है, इसका अक्टूबर में नहीं होता है। ठीक, अक्टूबर में नहीं होता तो प्रॉब्ली ही कुड हैव इशूड इज इन जनवरी, अप्रैल और जुलाई में से किसी एक या किसी 2 या किसी तीनों महीने में, बिकॉज ए का अपने को पता ही नहीं है। हाँ, ए के बारे में हम ये कह सकते थे कि ए डी जी एच का 12 है। अब यहाँ से अगर ध्यान दो, आपको ये पता है कि इन 12 को 4 में तोड़ना है, यानी कि ये 3 देना ही पड़ेगा। ठीक, यानी कि ए का भी 3 देना पड़ेगा और ये 3 अक्टूबर छोड़ के बाकी सारे महीने में होंगे, यानी कि जैन आना ही पड़ेगा। ठीक है, अप्रैल देना पड़ेगा एंड जुलाई होगा, तीनों महीनों में जो होने वाला था। अच्छा, ए डी जी एच का डी में भी 3 आने वाले हैं, जी पे भी 3 आने वाले हैं और एच में भी 3 आने वाले हैं। ठीक, तो ये तो हमने एक बहुत प्री फंड की इंफॉर्मेशन थी जो हमने निकाल ली। ठीक, अच्छा बी सी ई एफ के लिए अभी कंक्लूड नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे ना बी सी ई को 5 में तोड़ना है, तो ये 2 2 1 हो सकता है, 3 1 1 हो सकता है, या मतलब इन सब ऑर्डर 3 1 1 हो सकता है या 2 2 1 हो सकता है, बस ये 2 पॉसिबिलिटी है। तो अभी रुकता हूँ। ठीक है, ए वॉज फ्रॉम ऑटोमेशन एंड डिड नॉट हैव अ पेपर शेड्यूल्ड इन दी अक्टूबर इशू। ठीक, डन। None of the Indian author were from manufacturing area, none of the Japanese और Chinese author were from automation area। ठीक है, ऑटोमेशन एरिया के नहीं थे कौन कौन, इंडियन ऑथर्स नहीं थे। इंडियन ऑथर्स वर फ्रॉम नॉट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, तो इंडियन कहाँ के होंगे, या तो लॉजिस्टिक के होंगे या तो ऑटोमेशन के होंगे। एंड नन ऑफ द जापानीज और चाइनीज ऑथर वर फ्रॉम ऑटोमेशन एरिया। ऑटोमेशन वाले जो 2 लोग हैं वो दोनों इंडियन ही होने वाले, ये भी अपने को पता चलेगा, जिससे अपने ये भी कंक्लूड कर लिया कि ए कौन होगा, इंडियन होगा। ठीक है, अभी ऑटोमेशन का एक बंदा और आइडेंटिफाई करना है, वो भी इंडियन निकलेगा। पॉइंट नंबर 3 को अभी मैं टिक नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये मैं बाद में भी यूज कर सकता हूँ। मैंने इसका एक पार्शियल पार्ट लिया जिससे मैंने ये कंक्लूड कर लिया कि ए इज अ इंडियन। ठीक, ए एंड एच वर फ्रॉम डिफरेंट कंट्री बट हैड दियर पेपर शेड्यूल इन एक्जैक्टली द सेम इशू। ए और एच जो है अलग अलग कंट्री के थे, यानी कि ये जापान या चाइना का हो सकता था, पर इनका जो इशू मंथ है वो बराबर है, यानी कि जनवरी इधर भी आना चाहिए, अप्रैल इधर भी आएगा एंड जुलाई इधर भी आएगा। ठीक है, ए एंड एच वर फ्रॉम डिफरेंट कंट्री बट हैड दियर पेपर शेड्यूल इन एक्जैक्टली सेम इशू। ठीक है, मैं 4 को राउंड कर रहा हूँ बिकॉज अभी मेरे को ना ये वाला पार्ट नहीं निकला कि ए और एच की कंट्री का, ये शायद बाद में काम है। ठीक, सी एंड डी बोथ चाइनीज ऑथर फ्रॉम डिफरेंट एरिया। सी और ई दोनों चाइनीज हैं, सी भी चाइना वाला है एंड ई भी चाइना वाला बंदा है। ठीक, चाइना के 2 बंदे निकालने थे, डन। ठीक है, जापान के 2 बंदे अभी नहीं पता, इंडिया के 2 बंदे निकल चुके हैं। ठीक है, अभी ऊपर वाले इन्फॉर्मेशन को जरा वापस से मैं पढ़ूं, ए एंड एच वर फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, ए इंडियन है तो एच इंडियन नहीं हो सकता, तो वो चाइना और जापान का होना था, चाइना वाले 2 निकल चुके, तो ये एच भी मिल गया, जापान का होना चाहिए था। ठीक, अच्छा सी एंड डी बोथ चाइनीज ऑथर फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। अच्छा, इनका जो एरिया है वो अलग होने वाला है। इनका एरिया क्या हो सकता है, इनका एरिया लिखा हुआ ऑटोमेशन नहीं हो सकता, पॉइंट नंबर 3 में था ना कि ऑटोमेशन वाले नहीं है, तो इनका एरिया क्या हो सकता है, या तो लॉजिस्टिक होगा या तो मैन्युफैक्चरिंग होगा, या मैन्युफैक्चरिंग होगा या तो लॉजिस्टिक होगा। ठीक, अभी मैंने ये कर लिया, अब गोइंग फर्दर मे बी एबल टू आइडेंटिफाई कि इनका एग्जैक्टली क्या होगा। ठीक है, सी एंड डी बोथ चाइनीज ऑथर फ्रॉम डिफरेंट एरिया हैड द सेम नंबर ऑफ
paper scheduled. Further, E had paper scheduled in consecutive issue of the journal, but C did not. ठीक है, सी और ई के बारे में लिखा हुआ है कि सी और ई का जो मंथ है, मतलब ये जो दोनों का वो है, इन दोनों का सेम नंबर ऑफ इशू होना चाहिए, सी और ई का। ठीक है, अब सी और ई दोनों यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ये क्या हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, 1 देके, या 3 1 1 भी हो सकता है। तो इसके बारे में अभी मैं बहुत ज़्यादा कंक्लूड नहीं कर पाऊंगा, बट ये भी लिखा हुआ है कि फर्दर ई हैड पेपर शेड्यूल्ड इन कंसिक्यूटिव इशू ऑफ द जर्नल बट सी डिड नॉट। ई का कंसिक्यूटिव है, यानी कि ये 1 नहीं रहा होगा, 2 रहा होगा, बट टू अर्ली टू मेक एनी कंक्लूजन। सो I'll still wait and I'll go to point 6 7 8 and then come back to point number 5। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 पे चलते हैं। पॉइंट 5 को मैं फिर से होल्ड कर रहा हूँ, पॉइंट नंबर 4 और 5 दोनों होल्ड करा हुआ है। 6, बी फ्रॉम द लॉजिस्टिक एरिया, बी जो है लॉजिस्टिक का बंदा है। ठीक है, बी फ्रॉम द लॉजिस्टिक एरिया हैड अ पेपर शेड्यूल्ड इन द अप्रैल इशू ऑफ द जर्नल। ठीक है, इनका अप्रैल में लगा हुआ है। ठीक है, बी फ्रॉम द लॉजिस्टिक एरिया हैड अ पेपर, इनका एक ही पेपर था। अच्छा, इनका एक ही पेपर था एंड दैट वाज शेड्यूल्ड इन द अप्रैल मंथ। ठीक है, अब जैसे सम पीपल वुड से कि सर आपने ये हैड अ पेपर है तो यहाँ पे ओनली तो लिखा नहीं है, तो ऐसा तो नहीं यहाँ पे एक से ज़्यादा हो सकता था। देखो यहाँ पे मेरे को प्राइमा फेसी तो दिख रहा है एक ही होना चाहिए, बट उस कन्फ्यूजन को भी आगे देखो दूर होते हुए दिखेगी। ठीक है, चलो इसको ना थोड़ा सा अपन हाईलाइट करके चलते हैं, क्योंकि मैं वापस इस पे आऊँगा। ठीक, पॉइंट नंबर 7, बिकॉज बहुत ज़्यादा जब इन्फॉर्मेशन होती है ना, तो शांति से पूरा पॉइंट 1 से लेकर 9 10 जो भी है वो पढ़ो, उसके बाद तुम्हें चीज़ें फिगर आउट होती हुई दिखाई देंगी, जो भी तुम्हारी कंफ्यूजन है वो दूर होती हुई दिखाई देंगी। बी एंड जी बिलोंग टू द सेम कंट्री, बी और जी दोनों सेम कंट्री के हैं, बी और जी दोनों सेम कंट्री के। वो कंट्री क्या हो सकती है, वो इंडिया और जापान ही हो सकती है, और कोई हो नहीं सकती। ठीक है, बी एंड जी बिलोंग टू द सेम कंट्री, नन ऑफ देयर पेपर वर शेड्यूल्ड इन द सेम इशू ऑफ द जर्नल। अगर ध्यान दो तो जी का 3 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे वो तुम्हारा कंफ्यूजन भी देर हो जाएगा, जी का 3 है और ऊपर लिखा था कि भाई इसी में लिखा हुआ है कि बी और जी अलग अलग इश्यूज में अपना जर्नल इशू करते हैं। बी एंड जी बिलोंग टू द सेम कंट्री, नन ऑफ देयर पेपर वर शेड्यूल्ड इन द सेम इशू ऑफ द जर्नल। यानी कि ये दोनों क्या सेम इशू में नहीं करते, यानी कि जी ने अगर 3 बार करा है तो बी उन तीनों में नहीं किया होगा, तो बी के लिए एक ही ऑप्शन बचता है विच इज 1 मंथ, और वो मंथ क्या मिला, अप्रैल। ठीक, ये 2 स्टेटमेंट आप कंक्लूड कर पा रहे हो। अब ये पूरा सॉर्टेड हो गया। आप मैं यहाँ पे ये भी टिक कर लेता हूँ कि पॉइंट नंबर 7 इज कम्प्लीटली डन, सॉरी पॉइंट नंबर 6 इज कम्प्लीटली डन। अब पॉइंट नंबर 7 को दोबारा पढ़ लेते हैं। बी एंड जी बिलोंग टू दी सेम, बी एंड जी बिलोंग टू दी सेम कंट्री। ठीक है, बी और जी का जो सेम कंट्री है वो क्या होना चाहिए था, इंडिया ही हो सकता है, बिकॉज जापान अब नहीं ले सकते। ये मैंने शायद पीछे डिफरेंट कंट्री का लॉजिक बोल दिया था, बट बी एंड जी का इंडिया ही होगा, बिकॉज अपने को 2 कंट्री बनाना है, वो चाइना नहीं हो सकती, वो जापान नहीं हो सकती। बी का इंडिया आएगा ही आएगा। ठीक है, बी एंड जी बिलोंग टू दी सेम कंट्री, जी भी इंडिया आएगा ही आएगा। ठीक, बी एंड जी बिलोंग टू द सेम कंट्री, नन ऑफ देयर पेपर वर शेड्यूल्ड इन द सेम इशू। इनका अगर 1 अप्रैल में है तो इनका बचे हुए मंथ में होना चाहिए, यानी कि इनका जैन में होगा। ठीक है, अप्रैल की जगह पे इनका जुलाई में होगा और अक्टूबर में रहा होगा। ठीक, अपने को बी और जी का भी मिल गया। अगर ध्यान करो तो 1 2 3 4 4 इंडिया के मिल चुके हैं, यानी कि डी कौन होना चाहिए, जापान वाला बंदा। ठीक, अपने को ये वाला पूरा इंफॉर्मेशन यूज हो गई है, ये जो कंट्री वाला। ठीक, कंट्री इज डन। एरिया अभी भी मेरे को नहीं पता है, अभी और देखते हैं क्योंकि अभी भी 2 पॉइंट बाकी है। डी अ जापानीज ऑथर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि ये तो हमने निकाल रखा था, हालांकि ये यहाँ पे भी दिख रहा है। डी अ जापानीज ऑथर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एरिया, यानी कि ये मैन्युफैक्चरिंग का था। डी अ जापानीज ऑथर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एरिया डिड नॉट हैव अ पेपर स्केड्यूल्ड इन जुलाई इशू। ये जुलाई में नहीं करा, अगर ये जुलाई में नहीं करा तो ये बचे हुए 3 महीनों में करेगा, यानी कि ये जनवरी में किया होगा, ये अप्रैल में किया होगा, ये अक्टूबर में करेगा ही करेगा। ठीक है, ये भी डन। 7 वॉज ऑल्सो डन। ठीक है, पॉइंट नंबर 9, सी एंड एच बिलोंग टू द डिफरेंट एरिया, सी और एच अलग अलग एरियाज के हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करा, एक बार पढ़ते हुए आया, मैंने काफ़ी चीज़ों को फिगर आउट कर लिया है। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, मंथ वाइज बात करें तो मेरे को सी और ई का निकालना बाकी है, एरिया की बात करें तो मेरे को सी का, ई का, जी का, एच का एरिया निकालना बाकी है। ठीक, एक बार फिर से पढ़ते हुए आते हैं, देखते हैं कि अपन और क्या सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कलर कोड दूसरा ले लेते, थोड़ा और क्लैरिफाई हो जाए। ठीक, पॉइंट नंबर 1, एफ एन इंडियन ऑथर, ये हमने पूरा यूज कर लिया था। पॉइंट नंबर 2 हमने पूरा यूज कर लिया था। पॉइंट नंबर 3 हमने पार्शियल यूज करा था, जिसमें लिखा था नन ऑफ द इंडियन ऑथर वर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी इंडियन ऑथर मैन्युफैक्चरिंग का नहीं था। ठीक है, एंड
अगर वो इंडियन ऑथर मैन्युफैक्चरिंग का नहीं था तो वो लॉजिस्टिक का हो सकता था, वो ऑटोमेशन का हो सकता था, ठीक है। एंड नन ऑफ द जापानीज और चाइनीज ऑथर वर फ्रॉम ऑटोमेशन एरिया। अभी रुकते हैं। ए एंड एच वर फ्रॉम डिफरेंट एरिया। ए ऑटोमेशन है, एच का क्या होने वाला है नहीं पता। ऑटोमेशन के अपने पास कितने लोग थे, 2 लोग थे, ठीक है, जिसमें से एक मिला है। मैन्युफैक्चरिंग के कितने लोग थे, 2 लोग थे, और लॉजिस्टिक के कितने थे, 4 थे। तो मैन्युफैक्चरिंग का भी एक बंदा मिला, अभी भी एक बंदा और आइडेंटिफाई करना अपने को बाकी है, ठीक है। ए एंड एच वर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, ये तो यूज कर लिया था, बट हैड पेपर शेड्यूल्ड इन दी सेम इशूज, ठीक है। ए और एच का सेम इशूज में था, तो हमने ये पूरा यूज कर लिया। डन, ये भी डन है। सी एंड ई बोथ चाइनीज ऑथर फ्रॉम डिफरेंट एरिया। सी और ई दोनों डिफरेंट एरियाज के हैं, ठीक है, बट हैड द सेम नंबर ऑफ पेपर शेड्यूल्ड। अब यहाँ पे सेम नंबर क्या होना चाहिए, 2 और 2 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, पूरा पढ़ लेते। सी एंड ई बोथ चाइनीज ऑथर फ्रॉम डिफरेंट एरिया हैड द सेम नंबर ऑफ इश्यूज। फर्दर ई हैड पेपर शेड्यूल इन कंसेक्यूटिव इशू ऑफ द जर्नल बट सी डिड नॉट। ई का कंसेक्यूटिव था, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पे जनवरी में कितने पेपर आने थे, 5, जिसमें से 1 2 3 4, अभी 1 जनवरी का आना बाकी है। अप्रैल में कितने आने थे, 5, 1 2 3 4, यानी कि 1 अप्रैल का आना बाकी है। जुलाई के लिए कितने आने थे, 4, 1 2 2 3, यानी कि 1 जुलाई का भी आना बाकी। अक्टूबर के लिए 4, अक्टूबर के लिए अपने पास 1 2 और 3, ठीक है। यानी कि अपने को चारों अलग अलग महीनों के इशू आना बाकी है। अब ऐसा है ना कि इन दोनों में से अपने को जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दीज टू, सी और ई में देना पड़ेगा, जिसमें कि एक इन्फॉर्मेशन लिखी है, फर्दर ई हैड पेपर शेड्यूल्ड इन कंसेक्यूटिव इशू बट सी डिड नॉट। ई का कंसेक्यूटिव है पर सी का नहीं है, तो कैसे हो सकता था, जैन अप्रैल हो सकता था, लेकिन उस केस में दूसरे बंदे का जुलाई अक्टूबर हो जाएगा, और अपने को लिखा हुआ है कि एक का करना है दूसरे का नहीं करना है। अच्छा, तो ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं ले सकता, इन दोनों को ले सकता हूँ, पॉसिबल है। अप्रैल जुलाई ले लूँ ताकि जो दूसरा है उसका जनवरी अक्टूबर आ जाएगा, ये पॉसिबिलिटी ले सकता हूँ क्या, जुलाई और अक्टूबर, ये नहीं ले सकता, बिकॉज इसको अगर जुलाई और अक्टूबर दूंगा तो दूसरा वाला जनवरी और अप्रैल आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने क्या कंक्लूड करा कि ये जो पॉइंट है अपना सी एंड ई का, फर्दर ई हैड पेपर शेड्यूल इन कंसेक्यूटिव, तो इनका कंसेक्यूटिव ई का क्या आएगा, अप्रैल एंड जुलाई, ठीक है। वाइल सी डिड नॉट एड, बट सी का नहीं था, तो सी का क्या आएगा, जनवरी एंड अक्टूबर, ठीक। हमने मंथ भी आइडेंटिफाई कर लिया, अगर ध्यान दो तो हमें पूरा मंथ का नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स एंड किस किस मंथ में वो हो रहा है वो भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब एरिया है जो बाकी है, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 कंप्लीटली डन, पॉइंट नंबर 5 डन, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 बाकी अभी भी अपने पास, पॉइंट नंबर 3 बाकी। पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा था, ए एंड एच वर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज बट हैड, अच्छा ये भी यूज कर लिया था। पॉइंट नंबर 5 भी हमने यूज कर लिया। पॉइंट नंबर 3 अपना बाकी है, और पॉइंट नंबर 9 बाकी। पॉइंट नंबर 9 क्या कह रहा है, सी और एच, ठीक है, डिफरेंट एरिया कहते हैं। अब वो एच का जो एरिया है वो क्या हो सकता है, वो भी लॉजिस्टिक और मैनेज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेशन नहीं आ सकता, ये समझना। बिकॉज क्या लिखा था यहाँ पे, अगर आपको ध्यान हो तो, ऑटोमेशन वाले ना ही जापान के ना ही चाइनीज है, तो यहाँ पे ऑटोमेशन तो आएगा नहीं, यहाँ पे क्या आना चाहिए, लॉजिस्टिक, और यही आना चाहिए था, ठीक। अब ऑटोमेशन के जो आने वाले थे 2 लोग, वो कौन होंगे, इंडिया एक आ चुका है, इधर नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता, यानी कि यहीं पे आना चाहिए। ऑटोमेशन का एक और बंदा मिल गया अपने को, ठीक। ऑटोमेशन वाले डन। अच्छा, लॉजिस्टिक के जो 4 मिलने थे, एक प्रॉब्ली इन दोनों में से कोई 2 और इन दोनों में से कोई 2, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में इन दोनों से 2, इन दोनों से 2। अब अपने पास जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, सी एंड एच बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुप, ठीक है। एंड एक और पॉइंट है जहाँ पे वी हैव लेफ्ट, क्योंकि यहाँ पे सी और ई के बारे में भी अपने को दिया हुआ था कि सी और ई बोथ फ्रॉम डिफरेंट एरिया, और सी एंड एच बोथ फ्रॉम डिफरेंट एरिया, ठीक है। सी और ई भी अलग अलग एरिया के हैं, सी और एफ भी, सी और एच भी अलग अलग एरिया के, और अपने को 2 लॉजिस्टिक देना और 1 मैनेजर देना है, ठीक है। फिर से समझना, सी और ई अलग अलग एरिया के हैं, सी और एच अलग अलग एरिया के हैं, ठीक है। और इनका जो दोनों तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस में हो सकता था, लॉजिस्टिक में और मैन्युफैक्चरिंग में, जिसमें से 2 लॉजिस्टिक है और 1 मैन्युफैक्चरिंग है। तो वो कैसे बनेगा, वो जो 2 लॉजिस्टिक है वो किसको दे देंगे हम, इसको और इसको, ठीक है, एंड इनको दे देंगे हम मैन्युफैक्चरिंग। तो अब क्या हुआ अपने पास,
कितने मैन्युफैक्चरिंग वाले थे? 2 थे। एक मैन्युफैक्चरिंग ये निकल गया, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग ये निकल गया। लॉजिस्टिक वाले कितने थे? 4 थे। तो एक लॉजिस्टिक, 2 लॉजिस्टिक, तीसरा लॉजिस्टिक एंड चौथा लॉजिस्टिक। और अब ये स्टेटमेंट को भी ट्रू हो जाएगा, जिसमें लिखा था कि सी एंड एच बिलोंग टू डिफरेंट एरिया, सी और एच डिफरेंट एरिया के हैं, एज वेल एज सी एंड ई ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट एरिया, सी और ई भी डिफरेंट एरिया के अपने बन गए। ठीक है, एकदम कॉम्प्लेक्स सेट कह सकते हो, बट लेकिन अगर थोड़ा शांत दिमाग से सॉल्व करोगे तो पेपर वाले टाइम पे तुम निकाल ले जाओगे। मतलब टाइम टेकिंग सेट है, शायद 20 मिनट के आसपास ये पूरा तुम्हारा टाइम खा जाता, 18 से 20 मिनट का, बट लेकिन ये तुम्हारा सॉल्व करके पूरा देता। मतलब इस पर्टिकुलर स्लॉट के अंदर, अगर स्लॉट नंबर जो तुम्हारा 1 था, इसके पहला वाला सेट और ये 2 सेट ऐसे थे जिन्होंने एक ठीक ठाक सा सेक्शनल स्कोर तैयार करवा दिया था। ठीक है, चलो लेट्स जंप टू द क्वेश्चन पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द नंबर ऑफ पेपर रिटन बाय बी, सी, ई एंड जी। बी ने कितना करा? 1। ठीक है, सी ने कितना करा? 2, ई ने करा है 2 और जी ने करा है 3, यानी कि 1 2 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर, 1 2 2 3। हाउ मेनी पेपर वर रिटन बाय इंडियन ऑथर? इंडियन ऑथर ने कितने करे? 3 4 4 1 5 3 8, यानी कि यहाँ पे कितने होने वाले? 8। ठीक है, इंडियन है ना 8, यहाँ पे 3 4 4 1 5 5 3 8। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू? मस्ट बी ट्रू पूछा हुआ है। ठीक है, एवरी इशू हैड एटलीस्ट 1 पेपर बाई ऑथर फ्रॉम ईच कंट्री। ठीक है, हर इशू में ऑथर बाई ईच कंट्री। जनवरी में देखो इंडियन है। ठीक है, जनवरी में चाइनीज वाला बंदा भी है, जनवरी में जापान वाला भी है। अप्रैल का चेक कर लें, अप्रैल में इंडियन भी है, अप्रैल में जापान वाला भी है, अप्रैल में चाइना वाला भी है। ठीक है, जुलाई में इंडियन है, जुलाई के अंदर चाइना वाला भी है, जुलाई वाले में जापान वाला भी है। अक्टूबर में चाइना वाला है, अक्टूबर में इंडिया वाला भी है, अक्टूबर में जापान वाला भी है। ठीक है, तो जनवरी अप्रैल जुलाई चेक कर लेते ना, सॉरी अप्रैल चेक कर लेते। अप्रैल में भी है, जैन अप्रैल ये भी है। हाँ, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू, ये तो ट्रू दिख रहा है। ठीक है, बी चेक कर लेते हैं। एवरी इशू हैड एटमोस्ट 2 पेपर बाय ऑथर फ्रॉम ईच एरिया। हर इशू, एवरी इशू हैड एटमोस्ट 2 पेपर बाय ऑथर फ्रॉम ईच एरिया। ज़्यादा से ज़्यादा 2 होने वाले हैं। ठीक है, हर इशू के अंदर फ्रॉम ईच एरिया, ऐसा है क्या? जनवरी में अगर ध्यान दे तो जनवरी में 5 थे ना, तो पॉसिबल ही नहीं है अगर हम सब एक, या ऐसा हो सकता है कि 3 एक एक दे सकते हैं, बट इसमें एक बार चेक कर लेते हैं। जनवरी में ईच एरिया बोला हुआ है, ऑटोमेशन के है एक, मैन्युफैक्चरिंग पे भी एक है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग पे इनफैक्ट 2 है, एंड लॉजिस्टिक पे भी एक है। तो जनवरी का तो ठीक है, जनवरी का वी कैन से। अप्रैल चेक कर लेते हैं, अप्रैल में भी ऑटोमेशन का एक है, अप्रैल में भी लॉजिस्टिक का भी एक है। एटमोस्ट बोला हुआ है तो एक तो कम से कम चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अप्रैल का भी है, और लॉजिस्टिक और कहाँ पे? लॉजिस्टिक यहाँ पे भी, अप्रैल यहाँ पे भी है, तो ये भी हो सकता है। यार ये तो कोई प्रॉब्लम है ना, अप्रैल का अगर ध्यान दो तो अप्रैल में लॉजिस्टिक एक यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अप्रैल में लॉजिस्टिक यहाँ पे भी आ रहा है, अप्रैल में लॉजिस्टिक यहाँ पे भी आ रहा है, और अपने को बोला था कि एटमोस्ट 2 पेपर बाई फ्रॉम ईच एरिया। यहाँ पे दिख रहा है कि लॉजिस्टिक जो है अप्रैल में 3 बार आ रहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, यानी कि ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ दिस क्वेश्चन वॉज वेरी ट्रिकी, मतलब बहुत पेशेंस के साथ ही निकालना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा ऐसा है जो फॉल्स है? एवरी इशू हैड एक्जैक्टली 1 पेपर बाई ए चाइनीज ऑथर, ऐसा है क्या? चाइनीज में जनवरी वाला चाइना पे दिख रहा है, जनवरी अक्टूबर दिख रहा है, अप्रैल जुलाई दिख रहा है, ये तो परफेक्टली ट्रू है। ठीक है, एवरी इशू हैड एटलीस्ट 1 पेपर बाय ऑथर फ्रॉम ऑटोमेशन एरिया, ऑटोमेशन में जनवरी अप्रैल जुलाई है, ऑटोमेशन में जनवरी जुलाई अक्टूबर है, ये भी ट्रू है। ठीक है, एवरी इशू हैड एक्जैक्टली 2 पेपर बाय ऑथर फ्रॉम लॉजिस्टिक एरिया, अच्छा एक्जैक्टली 2 फ्रॉम लॉजिस्टिक एरिया। लॉजिस्टिक में यार अभी हमने देखा था ना कि अप्रैल में 3 हो जा रहा है, लॉजिस्टिक यहाँ पे नोटिस करो, जिसकी वजह से हमने ये ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट बी को कॉन्ट्राडिक्ट करा था। ठीक है, अगर ध्यान दो तो ये वाली चीज़ यही तो रिपीट करा, एवरी इशू एट एक्जैक्टली 2 पेपर बाय ऑथर फ्रॉम लॉजिस्टिक एरिया। लॉजिस्टिक में अप्रैल 1 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, लॉजिस्टिक में एक अप्रैल यहाँ पे भी आ जा रहा है, लॉजिस्टिक में 1 अप्रैल यहाँ पे भी आ रहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है। ऑप्शन नंबर 4 भी चेक कर लेते हैं, एवरी इशू हैड एक्जैक्टली 2 पेपर फ्रॉम इंडियन ऑथर। इंडियन ऑथर के 2 थे,
अप्रैल में 2 हैं, ठीक है। इंडिया वाले कहाँ कहाँ पे, इंडिया वाले में 1 2 3 4, तो यानी कि 1 2 जनवरी में 1 और 2 हैं बिल्कुल सही, अप्रैल में 1 और 2 हैं बिल्कुल सही, जुलाई में 1 और 2 हैं बिल्कुल सही, अक्टूबर में 1 और 2 हैं, यानी परफेक्टली ट्रू। ऑप्शन नंबर ए बी डी आर परफेक्टली ट्रू, वाइल ऑप्शन नंबर सी इज फॉल्स। अगेन वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा पेशेंस दिखा के निकालना था। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा है जो फॉल्स है। देयर वाज एक्जैक्टली वन पेपर बाय एन इंडियन ऑथर फ्रॉम लॉजिस्टिक एरिया इन अक्टूबर इशू, ऐसा है क्या। There was exactly one paper by an author from logistic area in October issue. अक्टूबर में एक ही लॉजिस्टिक है एग्जैक्टली एक ही पेपर है, लॉजिस्टिक नहीं है, लॉजिस्टिक नहीं है, अक्टूबर एक और लॉजिस्टिक का था, नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देयर वाज एक्जैक्टली वन पेपर बाय एन ऑथर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एरिया इन द अप्रैल इशू, मैन्युफैक्चरिंग में अप्रैल में नहीं है, एक है, ये भी यार ट्रू है, ठीक है। देयर वाज एक्जैक्टली 2 पेपर बाय ऑथर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एरिया इन जुलाई इशू, मैन्युफैक्चरिंग में जुलाई वाले 2 बार है क्या, जुलाई वाले 2 बार नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में अगर ध्यान दो तो अक्टूबर है जो 2 बार आ रहा है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी शुड बी दी करेक्ट आंसर। देयर वाज एक्जैक्टली, ये देखो जनवरी वाले भी 2 बार आ रहे हैं, देखो दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, बाकी ऑप्शन नंबर ए बी डी आर अगेन करेक्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ नंबर ऑफ पेपर बाय ऑथर्स फ्रॉम ऑटोमेशन मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक एरिया रिस्पेक्टिवली। अच्छा, ऑटोमेशन में कितना है, 3 3 6, ठीक है। ऑप्शन से 6 वाले से शुरू होना चाहिए, यानी कि ये तो गलत, ठीक है। ऑटोमेशन पे 6 होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग का कितना होना चाहिए, 2 3 5, यानी कि 6 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बचा हुआ 7 होना चाहिए लॉजिस्टिक का, देख लो यहाँ पे लॉजिस्टिक का, 1 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 नहीं सॉरी यहाँ पे इन 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो बेसिकली कितना आया, 1 2 3 4 7, यानी कि 7 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई वुड रेट दिस एज अ मॉडरेट से डिफिकल्ट वाला सेट, मतलब एक्चुअल में पेपर वाले फेज में अगर आप बात करो ना तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा निकालना ट्रिकी हो जाता है। इसमें भी अगर आपने मेहनत कर ली ना तो क्वेश्चन नंबर 1 2 6 आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा आपको ऑब्जर्व नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 था जो थोड़ा ट्रिकी था, जहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करना था, ठीक है। चलो कीप प्रैक्टिसिंग।